हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम एजिंग टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, एजिंग या सेनेसेंस। इसमें हमने पिछले लेक्चर में एजिंग के साइन और उसके जो चेंजेस हैं उनके बारे में बात की थी। आज मैं एजिंग की थ्योरीज जो हैं उनको डिस्कस करूँगी। एजिंग जो है उसके वेरियस थ्योरीज या उसके वेरियस जो हैं वो कंसेप्ट्स कि किस तरीके से एजिंग जो है उसकी स्टडी की गई है। द प्रोसेस ऑफ एजिंग इट इन्वॉल्व्स अ डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस सेल्स, tissues, organ and system. Normal cells, they can go through only a fixed number of division before they die by a process which is called senescence. During their lifetime, the cells they accumulate damage which results into a gradual loss of their differentiated function and growth rate. For explanation of cause of aging, variety of theories they have been put forward. In all these theories, the common basic concept is that in organism the aging process is inherently present as a genetic feature which is generally referred to as genetic timetable or genetic clock. In this context, many scientists they consider that in the genome of organism aging genes are present which regulate the rate of aging, and it is for this reason that every organism has a fixed average life span. To explain the mechanism of working of the so-called genetic clock in cells, two main types of hypotheses they have been given to explain the aging. The one hypothesis is cellular theory of aging and second one is the pacemaker theory of aging. तो इसमें क्या है कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखा कि हर जो एनिमल होता है उसका लाइफ स्पैन जो है फिक्स होता है। तो उन्होंने स्टडी जो है उससे ये अज्यूम किया कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर एक जेनेटिक टाइम टेबल या जेनेटिक क्लॉक होती है और इस क्लॉक जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो एजिंग जीन्स जो हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह की थ्योरीज जो है जेनेटिक क्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह की थ्योरीज दी गई, एक तो सेल्यूलर थ्योरी और दूसरी वाली पेस मेकर थ्योरी। आज के अपने इस लेक्चर में हम सेल्यूलर थ्योरीज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेल्यूलर थ्योरीज ऑफ एजिंग। It was earlier believed that although aging it is a basic characteristic feature of a multicellular animal, but individual cells under favorable circumstances they are generally immortal because they have an infinite capacity to multiply. Later researchers they have however demonstrated that among multicellular animals the multiplicative capacity of cells it is related to the age of individual itself, यानी कि कोशिकाओं की जो मल्टीप्लिकेटिव जो कैपेसिटी होती है यानी कि उनकी मल्टीप्लाई करने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रत्येक इंडिविजुअल की जो उम्र है उसके से रिलेटेड होती है and to the average age of the species to which an individual belongs. For example, in a culture medium, fibroblast from human embryo, they die after dividing for about 50 times. But if the same cell are obtained natally from a newborn, they in culture divide approximately 20 to 30 times and then die. यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर ये डिफरेंस देखने को मिला है फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कि एम्ब्रियो से यदि हम एक इन विट्रो जो कल्चर मीडियम है उससे
यदि कोई कोशिका लेते हैं तो वो 50 टाइम्स तक डिवाइड होगी और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रॉय जाएगी या वो मर जाएगी। लेकिन यदि न्यूबॉर्न से पोस्टनेटल यानी कि न्यूबॉर्न की बॉडी से हम सेल लेकर के उसे कल्चर करें तो वो करीब 20 to 30 टाइम्स ही डिवाइड होती है और उसके बाद ये मर जाती है। Therefore, on the basis of such observations, it was put forward that in animal, the chief cause of aging was the appearance of functional decline in cells before the attainment of their maximal critical level of division. With the progressive increase in the malfunctioning of cells, the tissue, organs, organ systems and the animal itself is negatively affected, that is, it becomes progressively aged and ultimately it will die. यानी कि हर कोशिका जो होती है उसके अंदर जैसे जैसे वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है उसमें मालफंक्शनिंग जो है एज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सेल जो थ्योरी थी, सेलुलर थ्योरी जो दी गई थी एजी के लिए, ये इनको डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उसमें इंक्लूड की गई हैं। उसमें सबसे पहला है द एनवायरमेंटल और म्यूटेशनल थ्योरी। Adverse environmental factors such as cosmic rays, X-rays, they cause somatic mutations. These mutations they produce defective proteins which decrease the ability of cells to carry out their normal functions at normal rate. This leads to aging. The fact that sublethal exposure to radiation it lowers the lifespan of animal supporting this theory. यानी कि रेडिएशन एनवायरमेंटल और म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि कॉस्मिक रेज, एक्स रेज जो होते हैं वो सोमेटिक म्यूटेशंस का कारण बनते हैं और ये म्यूटेशन जो होते हैं उनकी वजह से बॉडी के अंदर डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं और ये डिफेक्टिव प्रोटीन्स जो हैं वो कोशिकाओं की एबिलिटी जो होती है उसको धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, जिससे कि कोशिकाएं जो हैं वो सामान्य फंक्शन जो है सामान्य रेट पर नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से एजिंग जो है वो होती चली जाती है। सेकेंड हम आते हैं जेनेटिक थ्योरी पर। जेनेटिक थ्योरी व्हाट इट सेज, इट इज़ लाइकली दैट एजिंग इज़ अ पार्ट and due of some kinds of developmental processes which bring about increase in the functional capacity of the various system of body during early development. These processes may be a part of program of timed development built into the genes. Different species of animals, different human families and different sexes in humans, they have different longevities because of having different genome. यानी कि जीनोम जो है वो इंडिविजुअल का हर जीनोम जो इंडिविजुअल का जीनोम जो है वो अलग अलग तरीके से वर्क करता है। थर्ड जो थ्योरी दी गई थी सेल्यूलर थ्योरी में वो है एनवायरमेंटल कम जेनेटिक थ्योरी। सम बायोलॉजिस्ट they hold that interaction between the environmental and genetic factors it brings about aging. This theory is supported by the fact that domestication which changes the environment of animals increase their lifespan. Next is metabolic theory. According to this theory, the cells and animals which have a high rate of metabolism and mature rapidly also age more quickly and die sooner than those which have relatively lower rate of metabolism and mature slowly. यानी कि जिनके अंदर हायर मैचुरेशन रेट मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो जल्दी मैच्योर होते हैं और जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म की रेट धीमी होती है वो धीरे मैच्योर होती हैं। फॉर इंस्टेंस यदि एग्जाम्पल की बात हम करें तो रैट जो है उसके अंदर मैच्योरिटी जो है कुछ वीक्स में ही आ जाती है बर्थ के तुरंत बाद और मैन के अंदर इसके काफ़ी समय लगता है। नेक्स्ट इज क्लिंकर थ्योरी। क्लिंकर थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एजिंग इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इस थ्योरी के अनुसार जितने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं कोशिकाओं में और टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट होंगे उतनी ही जल्दी एजिंग होगी।
Next is collagen theory. Collagen that surrounds the cells, it becomes impermeable with age. This stops the diffusion of material to and from the cells which start aging. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोलेजन या फिर इंटरसेल्यूलर कोलेजन जो है उसकी इम्परेबिलिटी में चेंज होने की वजह से सेल के फंक्शंस जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं और ये अल्टीमेटली एजिंग का कारण बनते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इलास्टिसिटी लॉस. विद एडवांसिंग एज there is decrease in elastic properties of connective tissues due to the deposition of calcium. This results in stiffening of joints and hardening of arteries. This in turn affects the physiological process in the cell that start aging. Next is nervous theory. According to this theory, aging process produce primary defects in certain centers of the central nervous system which control the functioning of endocrine glands. With the loss of control and the endocrine glands no longer functions properly, hormonal imbalance, it causes malfunctioning and aging of cells of many tissues and organ. It is known, for example, that decrease in sex hormones, it produces sign of aging in many mammals including human being. यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग कम होने की वजह से जो हार्मोन्स जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और इसकी वजह से हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रभावित होता है. हार्मोन्स का ये जो प्रोडक्शन होता है उसका इम्बैलेंस होने की वजह से सेल्स के अंदर सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर एजिंग स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट वन इज एंजाइम थ्योरी. इट सजेस्ट दैट एजिंग इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स बाय हाइड्रोलाइसिस रिलीज्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स जो है वो ब्रेक होने लगते हैं और उनकी वजह से एजिंग जो है वो हो जाती है. नेक्स्ट इज wear and tear or stress theory. The cells and tissues of the body continuously wear out due to the internal and external stress factors. This coupled with the fact that the regenerative capacity progressively decline with age causes aging and finally it causes death. Next one is cross linkage theory. According to this theory, aging it is caused by increase in the bonds between protein and nucleic acid molecule in the cell. कोशिकाओं के अंदर एजिंग जो है उसकी वजह से जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है मॉलिक्यूल जो है उनके अंदर बॉन्ड्स जो हैं बनने लगते हैं, वो इंक्रीज होने लगते हैं, उसकी वजह से एजिंग होती है. Thereby they altering the functional capacity or functional characteristic of these important cellular compounds. Next one is free radical theories. Free radical theory, in recent years much importance is given to the accumulation of free radicals within the cell as an index of aging and senescence. Normally oxidation it involves the transfer of a pair of electrons from one atom to another. ये आप लोग जानते ही हैं कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ. When an impaired electron escapes, it can cause damage to the molecules in nearby cell membrane. यदि कोई भी इम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बच निकलता है तो वो आसपास की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स. ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको भी कैप्चर करते हैं अपना पेयर बनाने के लिए और ऐसा करते समय ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को डैमेज या डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनके फंक्शंस जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं. फ्री रेडिकल्स जो होते हैं
फ्री रेडिकल्स डैमेज जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, बिल्डिंग अप विद एज, यानी कि ये जैसे जितने फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले जाते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है, उनका जो डैमेज होता है वो एक्यूमुलेट होता है और एज जो है उसके साथ यह बढ़ता चला जाता है। इन द नर्व सेल्स द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्री रेडिकल रिएक्शंस देयर बाय इम्पेयरिंग सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी कि नर्व सेल्स के अंदर ये लिपिड जो होते हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस के से जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं और इस तरीके से सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है, उसके अंदर इम्पेयरमेंट हो जाता है और इसकी वजह से ट्रांसमिशंस जो होते हैं वो भी सेल टू सेल कम्युनिकेशन में वो भी प्रभावित होते हैं। Furthermore, free radical damage to immune cell membrane lipids may ultimately impair the ability of immune cells to respond to invasive viruses and bacteria, यानी कि ये जो रेडिकल्स की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन का लिपिड्स जो होते हैं उनका इम्यूनिटी जो होती है उसमें भी इम्पेयरमेंट हो जाता है, होने लगता है और इसकी वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से वायरस और बैक्टीरिया के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो भी ख़त्म होने लगता है या कम होने लगता है, जिससे कि जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है वो एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनके अंदर डिजीज़ के लिए जो डिजीज़ से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। तो ये सारी जो डिफरेंट थ्योरीज थी वो सेलुलर थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेस मेकर